Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the new chapter, and that is alkyl halides and amine. And in this chapter we are in this lecture we are going to cover definition of alkyl halides, classification of alkyl halides, nomenclature of alkyl halides, physical properties and methods of preparation of alkyl halides. I'm sure you are not. It is not new thing for you to what are alkyl halides, but let's restart. First of all, alkyl halides is comprises of two words that these are alkyl and halides. Alkyl means R, and we all are familiar with what R is. And then we have halides. Halides means any of the halogen atom. And these are the this is the general representation of alkyl halide, and general formula of alkyl halide is CnH2n plus 1. This is alkyl, and for halide we will just write X. So this is alkyl halide. And if we are reading these slides, alkyl halides are the derivatives of alkanes in which hydrogen atom is replaced by an halogen atom, and halogen atom may be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Alkyl halides are represented by RX, R alkyl group, and X halogen like chloro, fluoro, bromo, iodo groups. So this is CH3. If I am writing like this, CH3Cl, so this is methyl chloride. Acha, then we have ethyl chloride, then we have propyl chloride, and so on. Fine, so we can just prolong these names. Okay, first of all, there are a chain of carbon atom that can be represented by R when drawing the structure. This is to refer as an R group. How many classifications of alkyl halide we have? We have three kinds of alkyl halide. We have primary alkyl halide, secondary and tertiary. These are the same things which we have discussed for the common naming, and for the common naming actually. Alkyl halide, for example, what is primary alkyl halide? First of all, let me clear you one thing. This is your functional group, which is X. The carbon which is directly attached with the functional group, this is known as alpha carbon. Alpha carbon के साथ if we have just one R attached, if we have just one alkyl radical attached, this is known as primary alkyl halide. Fine. If this alpha carbon which is directly attached with the functional group, if it contains two R's, R1 R2 different alkyl groups को शो कर रहा है और कुछ भी नहीं है. So if two R's are attached with the alpha carbon, so this is secondary alkyl halide. And what is tertiary alkyl halide? This one. If this carbon 3 valency, if this is so, R and R, and ऊपर आपके पास X है, so this is known as tertiary alkyl halides. And let me read it. Have one R group attached to the carbon linked with the halogen, alpha carbon भी कहते हैं उसको, have two R's and have three R's. So this is the classification of alkyl halides. That is how. अच्छा, alkyl halides के लिए भी होता है, alcohols के लिए भी यही है. For example, if someone is asking what is primary alcohol, what is tertiary alcohol, what is secondary alcohol, so the definition is same. ठीक है. अच्छा, types of dihalides. What are dihalides? We have two kinds of dihalides. Dihalides means कि if two halogens are attached with the chain. What is geminal dihalide? Geminal dihalides are two halogen atoms are bonded to the same carbon. Two halogen atoms. For example, this carbon is containing this bromine and this bromine. This is geminal. And what is vicinal? If adjacent carbons के साथ दो halogens attach हों, उनको vicinal बोला जाता है. This is the difference between geminal and vicinal. Then we have systematic common names. Here we are going to discuss nomenclature and the common name and IUPAC names. Systematic common names. Common names में हम लोगों ने नाम बताने हैं. आइसो है, सेकेंडरी है, टर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसो. इफ़ वी हैव टू आर्स अटैच विद द आपके पास ये है आपका अल्फ़ा कार्बन है. अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और ये आपके इस फॉर्म में अगर आपके पास ब्रांच फॉर्म में लगा हुआ हो, कौन लगा हुआ हो आपके पास अल्काइल रेडिकल ब्रांच फॉर्म में लगे हुए हैं, तो इसको आइसो कहते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी के अंदर क्या था, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, कि अगर आपका अल्फ़ा कार्बन है, ये आपका अल्फ़ा कार्बन है जो हेलोजन के साथ अटैच है, अगर इसके पास टू आर्स लगे हुए हैं, टू आर्स, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, दिस वन इज़ इथाइल, दिस वन इज़ मिथाइल, और नीचे आपके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा. सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज टोटल कार्बन काउंट करने हैं आपने. कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4. हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव? 4. बट अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली, बल्कि 3 नहीं 4.
इसमें एन होता है। एन के अंदर क्या होगा कि सिंपल एक चेन है, सिंपल चेन में आखिर में आपने हेलोजन लगा देना है। कार्बन काउंट करें, फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल की बात करेंगे तो 4 कार्बन आपके पास इस तरह से फॉर्म में लगे होंगे हाइड्रोजन के साथ, तो उसको एन ब्यूटाइल हैलाइड कह दोगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आइसो है, सेकेंडरी है और टर है। इस हैं सारे ब्यूटाइल ही, लेकिन डिफरेंस देखते रहिए। सबसे पहले देखिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में सेकंड लास्ट कार्बन के पास एक अल्काइल रेडिकल होगा आपके पास, वो सेकेंडरी होगा, और बाकी आपके पास ये इसी तरह से अरेंजमेंट होगी। ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में आपके पास अल्फा कार्बन के साथ दो अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं अल्फा के साथ, एक हाइड्रोजन और 2 आर्स अटैच होंगे। उनके आपने टोटल कार्बन काउंट करने हैं, कितने हैं, किस तरह से अरेंज्ड हैं, वो आपने लगा देने हैं। और उसके बाद टर ब्यूटाइल के अंदर क्या होगा, इस अल्फा कार्बन की 3 वैलेंसीज जो हैं, लुक एट दिस, तीनों वैलेंसीज आपके पास किससे सेटिस्फाइड हो रही हैं, ये आपके पास ब्रोमीन से सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसको आप टर ब्यूटाइल कहोगे। अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ टर ब्यूटाइल ही हो, टर पेंटाइल भी हो सकता है। टर पेंटाइल होगा तो क्या होगा, सिंपल किसी एक जगह कार्बन की तादाद जो है वो इधर आप 2 कर देंगे इस CH3 को, और यहाँ आप 3 कर देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो हमने टोटल कार्बन काउंट करने होते हैं। इसी तरह आइसोप्रोपाइल हो सकता है, इसी तरह डिफरेंट आपके पास फॉर्म्स जो हैं वो बन सकती हैं। अब आ जाइए IUPAC सिस्टम ऑफ IUPAC naming. Name is based on the longest carbon chain. Again, the rules for the IUPAC naming are same. Select the longest carbon chain, this is the first rule. Number the carbon atom from the parent chain beginning at the end of the near the first substituent, whether the alkyl or halogen group जहाँ से अटैच्ड होगा, करीब होगा, वहाँ से नंबरिंग हमने देनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी, अगर आपकी ब्रांच भी करीब पड़ रही है, ब्रांच को भी नंबरिंग करीब पड़ रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने उसको नंबरिंग जो है वो उस साइड से देनी है, जिस साइड से हेलोजन करीब है या जिस साइड से आपका अल्काइल रेडिकल करीब है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। ओके, अगर हम ये बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, आपने नंबरिंग कर दी। और लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लिखने में आपने हेलोजन को पहले लिखना है हमेशा। दिस वन इज़ 5 ब्रोमो, सेकंड कार्बन पे आपके मिथाइल है, 4 कार्बन पे आपके पास मिथाइल है, तो यू विल जस्ट मेंशन 2,4 डाइमिथाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, इट इज़ हेप्टेन। सिमिलरली गोज विद दिस फॉर्म, लुक एट दिस, अगेन वी विल जस्ट राइट 2 ब्रोमो because it is on nearest one, 2 bromo, 4 and 5 dimethyl and again heptane. ठीक है, तो the difference must be clear. If more than one of the same kind of halogens present, use the prefix di, tri and tetra. If there are several different halogens, number them list in the alphabetical order. For example, अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन भी अटैच है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सारे हैं, तो अगर 2 ब्रोमीन है तो you will just simply say कि डाइब्रोमो। ठीक है, लेकिन अगर एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, तो पहले किसको नाम दोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे हम। ठीक है, अच्छा लुक एट दिस, ये रहा। समझ में होपफुली आप लोगों को आ रहा होगा, बिकॉज हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की बड़ी प्रैक्टिस की हुई है पहले। इट इज़ 2,3 डाइक्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। फाइन, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की, नंबरिंग आपने वहाँ से करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल करीब है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर पड़ रहा था तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद इट इज़ हेक्सेन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, आपने अब अगर हमारे पास सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं दोनों, तो हम लोगों ने नंबरिंग फिर किसको प्रेफरेंस किसको दोगे, ऑब्वियसली फिर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर सेकंड पे ब्रोमीन था, सेकंड पे हेलोजन था, तो हम लोगों ने नाम देना है 2 ब्रोमो, नंबरिंग भी वहीं से और नाम भी पहले उसी को, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन। दिस इज़ करेक्ट, नॉट 5 ब्रोमो एज इट इज़ रिटन। उसके बाद कह रहे हैं नेमिंग इफ़ 2 हलाइड्स और अल्काइल्स आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम एंड्स ऑफ द चेन बिगिन एट द एंड नियर द सब्स्टिट्यूएंट हुज नेम कम्स फर्स्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट। और अगर कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट किस्म के, एक तरफ क्लोरीन सेकंड पर है और एक तरफ है ब्रोमीन सेकंड पर है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। दैट्स हाउ इट इज़। फाइन, वेरी ईजी। उसके बाद कह रहे हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अल्काइल हैलाइड्स आर वीक पोलर मॉलिक्यूल, दे एग्जिबिट डायपोल। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है थोड़ा सा ना। कार्बन आपका 4th ग्रुप का मेंबर है, क्लोरीन आपका 7th ग्रुप का मेंबर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है ना, वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पोलैरिटी के डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डायपोल
डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है। कार्बन इज़ पॉजिटिव नेचर, कंटेनिंग पॉजिटिव नेचर, एंड हैलोजन इज़ कंटेनिंग नेगेटिव नेचर, बिकॉज वो थोड़ा पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की ज़्यादा होती है, दैट्स वाई। सो कह रहे हैं कि दे एग्जिबिट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिकॉज ऑफ देयर पोलर कार CX बॉन्ड, बट बिकॉज द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर इनकेपेबल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का फर्दर ऑन बॉन्डिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पर फर्दर ऑन बॉन्डिंग किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिर्फ एक एंड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हो रही है, बाकी सारी जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन हाइड्रोजन की आपस में हो रही होती है। अच्छा, डेंसिटी कोरस्पॉन्ड टू द मॉलिक्यूलर वेट, सबसे कम स्लाइटली वेट जो आपका फ्लोरीन है, ऑब्वियसली जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी डेंसिटी भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो फ्लोरीन सबसे लाइटर है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, फिर आपका क्लोरीन है वो 17 है, फिर ब्रोमीन आपका 80s में चला जाता है, और आयोडीन तो सबसे ज़्यादा है। तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट सॉरी, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंड्स ऑफ द डाइपोल इंट्रैक्ट्स, और ये आपके पास उन्होंने सिर्फ एक पिक्टोरियल डायग्राम जो है ये शेयर किया है कि ये आपके पास दैट इज़ हाउ ये बनते हैं। उसके बाद आ रहा है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन। अल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, एंड द रीज़न इज सेम बिकॉज थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो MP BP थोड़ा क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, BPs एंड MPs इंक्रीज एज द साइज ऑफ आर इंक्रीज, एंड ऑब्वियसली एज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स, तो चीज़ जो है नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, तो MPs एंड BP चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो MP BP तो उसका बढ़ेगा। BPs एंड MPs इंक्रीज़ एज द साइज़ ऑफ एक्स इंक्रीज़, और साइज़ ऑफ हेलोजन भी अगर इंक्रीज़ होगा तो जिस चीज़ का साइज़ जितना बड़ा होगा वो उतना ही टाइम लगाएगी मेल्ट होने में, उतना ही उसको टाइम लगेगा तोड़ने में। ठीक है, तो ये है मोर पोलराइजेबल हेलोजन हायर देन MP एंड BP। और उसके बाद कह रहे हैं RX इज़ इनसोल्यूबल इज़ सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, RX इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। याद रखिए, जो चीज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो गई ना वो पानी में सोल्यूबल नहीं होने वाली, और जो चीज़ पानी में सोल्यूबल हो गई है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं जनाब, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं अगर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ये सारे आपके बेंजीन है, ये हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी हैं, आपका पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं कि हाउ डू वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। आई गेस के पीछे हमने कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन, बट अगेन बिकॉज पढ़ रहे हैं तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, सिंपल अल्केन्स की हैलोजिनेशन करा दें तो बन जाएंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स, दैट इज़ वी हैव स्टडीड। Action of hydrogen halide on alcohol, I guess it is going to be repeated. Action of phosphorus halides on alcohol, and action of thionyl chloride on alcohol. Let me check now. There are several ways by which halogen alkanes can be made, including free radical substitution. This is the reaction we have studied. Simple, मीथेन की क्लोरीनेशन करवाई थी, in presence of sunlight होता है ये रिएक्शन, और ये बनता है आपके पास, एक मिनट, ये आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और ये मिथाइल क्लोराइड आपके पास बनता है, और ये काम चलता जाता है जब तक आपके पास CCl4 फॉर्म नहीं हो जाता प्लस HCl, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है। उसके बाद आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX और हैलोजन टू एन अल्कीन। सिंपल, ये आपके पास अल्कीन है, ये आपके पास अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आपने ऐड करवा देना HBr, एक जगह H लगा दें, एक जगह Br लगा दें, दिस इज़ द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, C2H5Br बन जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास इस तरह डायरेक्ट भी करा सकते हैं, C2H4Br2, ये आपके पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनता है। ठीक है, ये भी हम लोग पीछे देखा हुआ है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड, सिंपल, दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये आपके पास आ रहा है अल्कोहल का ये OH रिप्लेस कर दें X से। ठीक है, ये आपके पास OH ने रिप्लेस कर दिया X को, इथाइल हैलाइड बन गया, और पीछे आपके पास वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये आपके पास HX की जगह हमने प्रॉपर नाम लिख के दिखा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये आपके पास इथाइल क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, व्हाट इज़ थायोनाइल एक्चुअली, थायोनाइल के अंदर आपके पास S आना चाहिए, सल्फ़र आना चाहिए, उसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, SOCl2। Alcohol also react with thionyl chloride
in pyridine as a solvent to give alkyl chlorides. This is a method in especially useful because the remaining product HCl SO2 are gases which escape and leaving behind the pure products. This is the reaction. This is thionyl chloride, simple SOCl2, और ये होगा कि ये क्लोरीन आपके पास इस अगेन OH को रिप्लेस करेगा. पीछे आपके पास ये दो गैसेस रिलीज़ होंगी जो पीछे हमने देखा है SO2 एंड HCl. और उसके बाद कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5, अगेन दिस Cl एंड दिस Cl इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सटीट्यूशन. लेट वी चेक द रिएक्शन. फर्स्ट PCl3, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें. ओके, सो सॉरी, ये लीजिए. ये Cl ने रिप्लेस कर देना है और पीछे आपके पास ये जो OH है ये इसने PO3 के साथ, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, ये बना लेगा और ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. PCl5 का क्या है, सिंपल आपके पास ये बनेगा, POCl3 बनेगा और प्लस HCl गैस जो है वो रिलीज़ होगी. और ये आप इसका एक जनरल रिएक्शन है ROH विद द PBr3 RBr, कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड आपके पास है, और POH होल थ्राइस जो है आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है. उसके बाद कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड. कैसे, सिंपल अल्काइल आयोडाइड में क्या होगा, सिंपल कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होगा. वो क्या करेगा, वो इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और ये आपके पास रिएक्शन इस तरह से ऑकर होता है. दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन्स. सो आयोडिनेशन ऑफ अल्केन्स नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले अल्काइल मिथाइल क्लोराइड बना लेते हैं. क्लोराइड ईजिली रिप्लेसेबल होता है और फिर उसको फर्दर ऑन रिएक्शन करवा देते हैं विद एनी ऑफ द सॉल्ट, सोडियम आयोडाइड या जो भी सॉल्ट आपके पास हैं उनके साथ हम उसको रिएक्ट करवा देते हैं. यहाँ एक छोटी सी आपके सामने एक्टिविटी दी जा रही है, ये है, इनके आप कॉमन नेम्स लिखिए. अच्छा, कॉमन नेम्स के अंदर आपने अल्काइल हलाइड करके जो नाम लिखा जाता है ना, अल्काइल हलाइड, ये कॉमन होते हैं. आपने टर्ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखा, ये सारे कॉमन नेम्स थे. आयोपैक के अंदर हम अल्केन का नाम आखिर में लिखते हैं, ठीक है. तो इनके आपने, और ये जो आपके सामने आ रहे हैं इनके आपने आयोपैक नेम लिखने हैं. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने आगे इनकी रिएक्टिविटीज़ जो है वो डिस्कस करनी है. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस कर लें इसकी. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.